हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनालिस बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर यानी इतिहास का चैप्टर नंबर जो होगा 13 है, जिसमें हम करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था उन सभी राजाओं के अंतर्गत होगा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, या जो यूपीएससी के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, a land revenue assessment and is the magnitudes of the land revenue as a demand. That is the most important topic. The chapter here is economics. The economics here is the middle state period and that is the most important here. The middle state is derived to the largest share of its income from a land revenue. As the elaborate or mechanism of the land revenue or administration gradually developed due to the effort of their medieval ruler like Alauddin Khalji, Sher Shah Suri and Akbar. There is the most important here medieval rulers like Alauddin Khalji, Sher Shah Suri, Akbar. It is a development from to the land revenue administration involves a well-formulated policy, and this where is actually measurement of the cultivable land for the purpose of assessment of land revenue, and second year classification of the land on the basis of the fertility of soil, and third year is a fixation of the rate of the land revenue of demand and establishment of elaborate mechanism from its collection and working out of mediators from the assessment and collection of the land revenue in a cash. There is a most important here. And during the medieval period, different method of revenue assessment and collection were used. The most simple and basis method was crop sharing or batai. Batai is the most important for this time period. The state fixed a content ratio of produce as a state as a share. In this method, out of the total produce, the state share was collected by the designed officially. Here the measurement of the land had no bearing, no revenue collection. The actually produce was the main focus of attention. So here is the most important point, the crop sharing. The crop sharing is the most important here. The three types of crop sharing was a practice. And this very first division of the crop at the threshing floor after the grain was obtained. And second is a khet batai. The khet batai is a division of the field when the crop was standing. And third, there is a land batai. The land batai is also important here, in which their crop was cut and scattered in the heaps without a separating grain. The share of the state was decided in this form. In the second method, known as the is a concord, there is a measuring was important. And in this method, land was a first measure. After the measurement, the productivity of land was a estimate to fix the revenue demand per unit of the measuring area. Sher Shah is improve the method of assessment for estimating the productivity. Sample is a cutting from three types of land. There are good, middlings and bad land was taken and
or average yard was the obtained. This state demand was fixed at the 1/3 of the average yard. Revenue's demand per bigha for as every crop was declared and was now is a raya for the Sher Shah. There is the most important here. And during the initial year of Akbar, this rate where is the adopted from the whole empire. And here the state demand was expressed in a kind but could be collected paid in their cash after applying is a prevalent is a price on them. This is a third method was called Javat. Sign their assessment was is done on this basis of the measurement. Based on yard, their share of the state was decided. The under Akbar there is a method was further refined. All the territory were divided into the revenue circles or dasturs. For each dastur is a circle per a bigha, a revenue rate of different crop in the cash based on productivity and prices was worked out. The problem of complying is the fresh rate every year of the different localities was overcome through the adaptation of the ANA. The Hesal is a 10-year revenue rate as according to this is the average of the rates of the last 10 year was taken as a cash revenue rate for a particular crop. However, this where is a change at the is a regular interval and not updated every year. In the beginning, it was implemented in the province of Agra, Allahabad, Awadh, Delhi, Lahore, and Malwa. Later, it was extended to be some other region. However, at no point of time, all the land is a particular region was measured. That would be a suggest that even to the measured territory, some is the territories is remained to the unsourced. In such a situation, even the Jawat Israel region, other method of assessment and collection were followed in the almost all part of the country. There is the most important point here, a classification of the land. There is the most important here. There are classification of the land. After the measurement, the cultivable land was classified on the basis of the fertility of the land. The fertility is the most important here and it is three category, good, middling and bad. The land was further classified into four category is a Polas, Parati, is a Char and the Banjar on the basis of continuity to cultivation. The Polas land was one which is a two crop where rise every year. Parati land is however had to be left follow as uncultivated for some time after the rising two crop to the recovered is the fertility. Their fertility is the most important for the land. The chars was the unfertilized is a tract of the land which was the both under cultivation. One is every 3 or 4 year, and the Banjar is a land is the Banjar land is which is unfit for cultivation and therefore the rarely both under to plug. The Banjar bhumi is not a is a unfit cultivation on there. The land revenue are constituted the block of the state as an income. The state therefore is constantly try to expand to the territory under cultivation to the maximize it is a revenue return. All the effort of the state where also is a focus in the ensuring of maximum is a realization of the revenue from to cultivator. The Mughals and land is a revenue administration was organized at the Praguns level. The task of surviving of land and collection of revenue was entrusted to different officials and the Amin was the head of the surviving parties whereas the Amil was in charge of the revenue collection. The Amin was assisted by their is a Nago who was the reposter and there is all the revenue record. The Chaudhary is associated with the Amil in their work of revenue collection. At the village level, the record were maintained by the Patwari and collection were made by the Mukaddam or village headman. And there were other officially such as the Patadar and Tracer was the Kum or clerk. And the record were maintained both in the person and language of the religion. The next year, Patta and
काबिलियत। The Patta and Kabiliyat, what you mean there? Patta and Kabiliyat is a cultivator was given to document by the state is called Patta. The title dead, and there is a, which is a give all the detail for of the various category of land held by the cultivator and the rate of the land revenue payable to him on different crop. A dead agreement is called is a Kabiliyat, according to which is the cultivator made to the a promise to pay a particular amount of land revenue to a state was taken from the cultivator. In addition to be a land revenue is a cultivator were also required to pay is intent to the additionally is a cheese in order to meet the cost of assessment and collection of revenues. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, भू राजस्व और मूल्यांकन और भू राजस्व की मांग का परिमाण। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सोचिएगा किसके अंतर्गत है, तो ये मध्यकालीन राजाओं के अंतर्गत है कि मध्यकालीन में जो भी राजाएं होने हुए उनके इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरह थी, वो भू राजस्व किस प्रकार से जो है मूल्यांकन किया करते थे और भू राजस्व की मांग का परिमाण क्या होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के लिए। कहते मध्यकालीन राज्य अपनी आय का अधिकतम भाग भू राजस्व से प्राप्त किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर जैसे मध्यकालीन शासकों ने जो है प्रयासों से धीरे धीरे भू राजस्व प्रशासन की एक व्यापक कार्य व्यवस्था का जो है विकास हुआ। अपने पूर्ण विकसित रूप से जो है भू राजस्व प्रशासन में बेहतरीन नीति शामिल थी। वे थी भू राजस्व के मूल्यांकन के प्रयोजन से कृषि योग्य भूमि का वास्तविक परिमापन करना, यानी जो है कृषि योग्य भूमि का क्या करना था, परिमापन करना था, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के आधार पर जो है भूमि का वर्गीकरण करना था, जो कि बहुत काफी महत्वपूर्ण था। भू राजस्व मांग के अनुरूप भूमि के जो राजस्व की दर निर्धारित करना, इसके संग्रह के लिए व्यापक कार्य प्रणाली स्थापित करना था। और देखा जाए तो नगद रूप में भू राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह के लिए रूपरेखा तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण उस समय पद्धति थी। मध्यकाल में लगान के मूल्यांकन के संग्रह करने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता था। सबसे सरल और जो है मौलिक तरीका था फसलों में भागीदारी या बटाई, यानी फसलों में भागीदारी और बटाई, जो कि काफ़ी उस समय गांव के क्षेत्र में प्रचलित थी। कुल उत्पादन का जो है भाग राज्य के भाग के रूप में निर्धारित किए जाते थे और इसके तरीके में कुल उत्पादन में से राज्य का हिस्सा निर्धारित कार्मिकों द्वारा एकत्रित किए जाते थे। और इस तरीके में लगान संग्रह करने में भूमि के माप की कोई भूमिका नहीं, ध्यान का जो है केंद्र था, वास्तविक उत्पादन का ध्यान उस समय था। यहाँ पर पॉइंट के रूप में देखें तो फसल में भागीदारी, आखिर फसलों में भागीदारी किस प्रकार से उस समय होती थी। कहते हैं 3 प्रकार की फसल में भागीदारी प्रचलित थी। पहला जो था अनाज प्राप्त होने के बाद छटाई की गई जगह पर की फसल का विभाजन, और दूसरा था खेत बटाई, यानी जो है खड़ी फसल पर खेत का विभाजन कर देना, इसे हम बटाई कहते हैं। और तीसरी जो था लंग बटाई, जिसमें फसल काटने के बाद इसे अनाज अलग किए बगैर ढेरों में बांटा जाता था। राज्य के हिस्से को इसी तरीके से निर्धारित की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था फसलों में भागीदारी, जो कि हम 3 रूप से यहाँ पर जाने हैं। दूसरे तरीकों में जिसे हम कानकूट कहते थे, भूमि का जो है माप महत्वपूर्ण था और इस तरीके में भूमि को पहले नापा जाता था और मापने के बाद भूमि के जो है उत्पादकता का आकलन किया जाता था। नापे गए भू क्षेत्र की प्रति इकाई के अनुसार लगान की मांग निर्धारित करने के लिए शेरशाह सूरी ने आकलन के तरीकों को काफ़ी सुधारा। कहते हैं उत्पादकता का आकलन करने के लिए जिन 3 प्रकार की भूमि यानी अच्छे, मध्य और खराब भूमि से दिया जा सकता था, नमूने के रूप में कटाई की जाती थी और एक जो है औसत फसल हासिल की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। राज्य की मांग औसत फसल के 1/3 हुआ करती थी, यानी 1/3 हिस्सा निर्धारित किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। प्रत्येक फसल के लिए प्रति बीघा के अनुसार लगान की मांग घोषित की गई थी, जिसे शेरशाह की राय कहते थे। अकबर के आरंभिक वर्षों में संपूर्ण जो है साम्राज्य के लिए यही दरें अपनाई गई थी। यहाँ राज्य की मांग को एक प्रकार से नकार दिया गया था, परंतु उस वक्त उन पर लागू जो है मूल्य के हिसाब से नगद रूप में भी एकत्र या भुगतान किए जा सकता था।
इस तीसरे तरीके के जब्त कहते थे क्योंकि इसे मूल्यांकन माप के आधार पर किया जाता था। प्राप्त फसल के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया गया था। अकबर के अधीन इन तरीकों में और सुधार किया गया था और सभी प्रदेशों को लगान मंडलों यानी सर्कल्स या दस्तूरी में बांटा गया था। प्रत्येक दस्तूरी सर्कल्स के लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन के आधार पर प्रति बीघा के अनुसार उनके नगद दरें और मूल्य आकलन किया गया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आता है कि भूमि का उस समय किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता था। देखिए, भूमि का वर्गीकरण भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था उसके समय में, यानी अच्छा, मध्य और खराब के रूप में भूमि को जो है आवंटन किया जाता था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि को नापने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर इसे 3 बांटों में बांटा गया था: अच्छी, मध्यम और खराब भूमि। खेती करते रहने के आधार पर भूमि को आगे और 4 वर्गों में बांटा गया था, जैसे पुलास, परती, चच्चर और जो है बंजर। पुलास भूमि वह थी जिसे हर वर्ष 2 फसल ली जाती थी। परती भूमि को 2 फसलों के बाद उसकी उपजाऊ शक्ति पुण्य पूर्ति के लिए छोड़ दिया जाता था और कुछ समय के लिए खाली बगैर खेती किए बिना ही छोड़ना पड़ता था, जिससे उसकी उर्वरकता क्षमता जो थी आपस आ जाती थी। चच्चर भूमि वह अनुपजाऊ भूमि का टुकड़ा होता था जिसपे हर तीसरे या चौथे वर्ष के अंतराल पर फसल उगाई जाती थी और बंजर भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी और इस पर जो है शायद ही कभी खेती की जाती थी, क्योंकि ये एक तरह से बंजर भूमि थी जिसको करना जो है आसान नहीं था। विभिन्न स्थानों के लिए हर वर्ष नई दरें सम्मिलित करने की जो है समस्या हल करने के लिए आयने दहला सालक या 10 वर्ष के लिए उगाने की दरें अपनाने के जरिए किया गया था। इसके अनुसार किसी विशेष फसल के लिए पिछले 10 वर्ष की दरों को औसत को किसी खास फसल के लिए लगान दर के रूप में माना जाता था। फिर भी इन दरों को जो है कुछ नियमित वर्षों के अंतराल पर बदल दिया जाता था और हर वर्ष आयतन नहीं किया जाता था। आरंभ में इस आगरा, इलाहाबाद, अवध, दिल्ली, लाहौर और जो मालवा प्रांतों में लागू किया गया था। यद्यपि किसी भी एक वक्त पर किसी विशिष्ट क्षेत्र की सारी भूमि को नापा नहीं गया था, इसलिए यह संकेत मिलता है कि जिन क्षेत्रों में भूमि का मापन किया जाता था वहां भी कुछ क्षेत्र ऐसे बच गए थे जिसकी भूमि का माप नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में वहां तक कि जब्ती क्षेत्रों में भी पूरे देश के लगभग सभी हिस्सों में लगान के मूल्यांकन और एकत्र करने के अन्य तरीके भी अपनाए जाते थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर राज्य के आय का अधिकांश भाग भू राजस्व से ही आता था, इसलिए राज्य लगातार इस कोशिश में लगा रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भू क्षेत्र को कृषि भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाए ताकि लगान की आय में वृद्धि की जा सके। राज्य के सभी प्रयास इस बात पर भी केंद्रित होते थे कि किसानों से अधिक लगान की वसूली की जा सकी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुगल कालीन भू राजस्व प्रशासन की व्यवस्था प्रांगण स्तर पर की जाती थी और भूमि के सर्वस्व और लगान एकत्र करने का काम विभिन्न कर्मचारियों को सौंपा जाता था। कहते हैं अमीन सर्वेक्षण समूह का मुखिया होता था उस समय, तो अमीन लगान संग्रह का प्रभावी होता था। अमीन के कामों में सहायता करता था और कानूनगो जो लगान संबंधी सभी अभिलेख रखने का जिम्मेदार था। लगान एकत्र करने में काम में अमीन की सहायता की जाती थी और चौधरी यानी चौधरी के जो है अमीन सहायता किया करते थे। गांव के स्तर पर जो है अभिलेख रखने का काम पटवारी करता था और संग्रह करने का काम भी किया करता था मुकद्दम अथवा ग्राम का मुखिया। कुछ अन्य अधिकारी भी थे जैसे जो है पोतदार, खजाची और जकारकून या क्लर्क्स। अभिलेखन का कार्य फारसी और संबंध क्षेत्र की भाषा सहित दोनों भाषाओं में उस समय हुआ किया करता था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पट्टा और काबुलियत। देखिए, पट्टा और काबुलियत क्या होती है। कहते हैं प्रत्येक किसान को राज्य द्वारा एक दस्तावेज दिया जाता था जिसे पट्टा कहते थे, यानी स्वामित्व या अधिकार पत्र। जिससे वो खेत का अधिकारी होता था उसे हम पट्टा कहते थे, जिसमें किसान के कब्जे में दी गई भूमि के विभिन्न वर्गों और विभिन्न फसलों पर उसके द्वारा देय भू राजस्व की दर के विवरण लिखा जाता था। किसानों ने एक सहमति पत्र लिया जाता था जिसे काबुलियत कहते थे, यानी कबूल करना, कबूलियत, जिसमें किसान से सहमति ली जाती थी। इसको सहमति पत्र के रूप में भी जाना जाता था, जिसके अनुसार किसान राज्य के भू राजस्व की एक विशिष्ट राशि देने का वचन देता था। यानी जो है राजा को जो है अपने भूमि से उगे हुए कुछ राशियों को
सरकार को देने के लिए जो है कबूलनामा किया जाता है, यानी कबूलियत की जाती थी। तो उसमें लिखित रूप में ये चीज़ें हुआ करती थी। कहते भूमि के लगान के अतिरिक्त किसानों के राजस्व मूल्यांकन और इससे एकत्र करने पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त कर भी देने पड़ते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये कहते हैं ये मध्यकालीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था कृषि करने की पद्धति, और हमने इसमें बहुत कुछ जानने की कोशिश भी किया। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बात तो मैं फिर से कह दूं कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ज़रूरी होगा। तभी जो है आपको समय समय पर जो है मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।